Dear students, today we cover new topic, that is the networking concept, networking basic. This is the new chapter, chapter number 4, and today we cover the socket overview, client server, reserved socket, proxy server, and internet addressing. Okay, so we start the session. So before we start the session, you know that what is the basic points you have to be studied in this chapter. So total the lectures is allocate is the 6 and the marks for the chapter is the 10. So this chapter is networking basic. It is a simple one, very simple one. This chapter is. So point number 1, it is introduction. In this introduction, you know the client server architecture, what are the reserved sockets, what is the proxy server, and what is the internet addressing, socket overview and server socket overview. That is the basic one. The next one is the Java and Net networking classes and interfaces. Third one is the inet address class, factory methods, and instance method. TCP/IP client socket, who is, then URL format, URL class, then URL connection class in this TCP/IP server socket, then datagram packets and datagram server and clients. So अब ये चैप्टर थोड़ा सा नेटवर्किंग है और when this concept is networking is occurs, then students are not take the interest for this. Why? Because the networking is difficult for most of the times for student point of view. But I think it is a very simple chapter, and if you cover this chapter is hardly 5 to 6 video is more than sufficient for this. So I just take the revise of this networking, and then with networking ka networking you have to be studied in the last year for the subject of this networking. So आपको नेटवर्किंग के बारे में एटलीस्ट सम points you have to be studied in this networking. So if I cover the networking, it is very difficult to cover all the subject of this last semester within these few session. So only a few point, those are important for programming point of view, we cover in this session, and then in next session we start the basic classes and interfaces related with this java.net package. So we use here the java.net package, and in this there are the networking classes just like the inet class, url class, url connection class, socket class, server socket class, datagrams class, datagram packet class. Those are the class that are available for your syllabus. We cover it, means we just understand what are the basic methods related with this class and what is the exactly a program of that particular class. We cover in this session one by one. So here is what you know that basically today the OSI रेफरेंस मॉडल. अब OSI रेफरेंस मॉडल की हिस्ट्री आपको
अगर यहाँ पे देखनी है तो मैं एक बार बोल सकता हूँ आपको, ये OSI रेफरेंस मॉडल, इसकी अगर हिस्ट्री आपको अगर जस्ट वेट, ओके, तो ये जो OSI रेफरेंस मॉडल जो बनाया है, इसको हम बोलते हैं कि ओपन सिस्टम, इसको क्या, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओके। तो ये जो मॉडल में टोटल 7 लेयर होते हैं। अब यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि, आपको इतना ही मालूम है कि बेसिकली अ नेटवर्किंग कंसेप्ट इज यूज फॉर दिस न्यू इन्वेंशन ऑफ और द computer field, that is the networking, sorry, that is the internet. So internet, you know that internet means it is the basic one or the standard communication. If we say that the standard communication means what, we have to inter process or network communication, ओके। तो थोड़ा सा ये हम थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे। पहला जो है, आपको मालूम है कि सी प्रोग्राम, सी लैंग्वेज इज डेवलप इन द साइंटिस्ट बाय डेनिस रिची, ओके, एंड दिस डेवलप इन द बेल लैबोरेटरीज इन 1969। देन आफ्टर यूनिक्स लैंग्वेज डेवलप हुआ है, और उसके बाद में यूनिक्स का जो इन्वेंशन है, उसके बाद में 1978 में यूनिक्स का जो कंसेप्ट है उसमें वर्चुअल मेमोरी यूज़ किया था। 1984 में सन माइक्रो सिस्टम दे डेवलप द BSD कंसेप्ट, एंड देन BSD के बाद में नेटवर्किंग का जो कंसेप्ट है वो TCP/IP इन्वेंशन हुआ है, दैट इज द बर्कली, ओके। सो बर्कली इज द मेन साइंटिस्ट दैट कैन बी डेवलप द कंसेप्ट ऑफ दिस नेटवर्किंग। एंड देन 1980s विंडोज और मैक OS, ये स्टार्टेड द बर्कली सॉकेट इन द 80s। तो ये हिस्ट्री हम है, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देखिए। अब यहाँ पे जो नेटवर्किंग के जो क्लासेस है, इसमें हमारा बेसिक जो हम यूज़ करने वाले हैं, इसमें हमारे OSI रेफरेंस मॉडल है, इसमें 7 लेयर होते हैं। तो नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ओके। सो ये जो लेयर है हमको यूज़ करते हैं हम। देखिए अब यहाँ पे अगर देखते हैं कि फिजिकल लेयर, तो ये है, इसमें हम वायर का यूज़ करते हैं, जैसे कि इथरनेट और वायरलेस। नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर में हम IP प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में हम 2 प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, TCP एंड UDP। और एप्लीकेशन लेयर में हम HTTP, FTP, टेलनेट, ये सर्विसेज यूज़ करते हैं। अब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है आपको, एक में कंसेप्ट नेटवर्किंग के जो है वो हम देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद में हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अब यहाँ पे मैंने बोला है कि नेटवर्किंग क्या है। नेटवर्किंग, व्हाट इज द नेटवर्किंग? इट इज़ द बेसिक कनेक्शंस बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर, दैट इज द नेटवर्किंग। नेटवर्किंग को ऑल्सो बोल सकते हैं कि मेनी कंप्यूटर्स यू कैन बी ज्वाइन टू ईच अदर्स, उसको हम नेटवर्किंग भी बोल सकते हैं। अब नेटवर्किंग का यूज़ क्या है? टू शेयर द इंफॉर्मेशन और टू पास द इंफॉर्मेशन, और यू हैव टू मैनेज योर द सॉफ्टवेयर बाय द सेंट्रली सॉफ्टवेयर, सेंट्रल कम्युनिकेशन, सेंट्रल मैनेजमेंट। जैसे हम रेलवे रिजर्वेशन या एयरपोर्ट रिजर्वेशन, ये हम यूज़ करते हैं। अब नेटवर्किंग के बहुत सारे यूज़ है, और एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज मीन्स
If there is no security, means no one can be anyone can be access your the information. So security ये मेन कंसेप्ट है. अब नेटवर्किंग में हम जो क्लास यूज़ करने वाले हैं, जो पैकेज यूज़ करने वाले हैं, उसका नाम जो है java.net पैकेज. अब ये जो क्लासेस में हम जो मेन प्रोटोकॉल या मेन प्रोटोकॉल जो यूज़ करने वाले हैं, जो कॉमन हम नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं, उसका नाम है टीसीपी और यूडीपी. अब टीसीपी का लॉन्ग फॉर्म जो आपको मालूम है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी का लॉन्ग फॉर्म मालूम है आपको, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल. अब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये जो है, वी हैव टू मेक द रिलायबल कनेक्शन कम्युनिकेशन इन बिटवीन द टू एप्लीकेशन, जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल. और यहाँ पे यूडीपी में यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल. ये टीसीपी में क्या होता है कि देर इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड मीन्स इट रिक्वायर्स द वायर, ऐसे बोल सकते हैं शॉर्ट में, मीन्स कनेक्शन बिटवीन द टू एप्लीकेशन. और यूडीपी इज कनेक्शन लेस, वायरलेस हम बोल सकते हैं कि मीन्स यू हैव टू पैकेट, इट कैन बी सेंड बाय यूजिंग द कनेक्शन लेस. यूडीपी ये एयर होता है और ये विदाउट एयर टीसीपी. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है. टीसीपी इट इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड, यूडीपी कनेक्शन लेस. कनेक्शन लेस मीन्स इसमें वायर नहीं है, टीसीपी में वायर है. थोड़ा सा ये बेसिक डिफरेंस है और लॉन्ग फॉर्म है. अब ये होने के बाद आपने अभी देखा था ये फिगर, नेटवर्किंग का फिगर देखा था. इसमें क्या है, एचटीटीपी, एफटीपी टेलनेट ये एप्लीकेशन लेयर पे है, टीसीपी यूडीपी ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे है, नेटवर्क या आईपी लेयर पे है, और नीचे जो फिजिकल लेयर है उसमें हम डिवाइस ड्राइवर्स या जो भी हमारा हार्डवेयर इंटरफेसिंग है, नेटवर्क कार्ड वगैरह, हम वो यूज़ करते हैं. अब इसमें जब भी हमको प्रोग्राम लिखना है तो हमारा जो भी काम हम करने वाले हैं वो किसके थ्रू होने वाला है, हमारा एप्लीकेशन लेयर थ्रू. तो एप्लीकेशन लेयर जब हम काम करने वाले हैं तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए हमको एक सॉकेट दिया जाता है. तो हम वही सॉकेट थ्रू एप्लीकेशन लेयर को कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व सॉकेट. ओके, अभी यहाँ पे देखिए फिगर मैंने दिखा है, एक सर्वर है और ये क्लाइंट है. अब जब मेरे को सर्वर को कनेक्ट करना है तो यहाँ पे वही सर्वर का पोर्ट मेरे को एक्सेस करना है. अब यहाँ पे मेरा जो बेसिक है क्लाइंट एंड सर्वर में, मेरा जो आर्किटेक्चर है वो ऐसा है, रेफरेंस मॉडल, उसको हम टीसीपी बोलते हैं. तो कनेक्शन बेस्ड टीसीपी सर्वर is binds with this a socket with along with this port, and if the server is understand the which port is accessed by the client, that a port information is available with this a server, and if it can be receive the information from the port, then it can be activate, and according to that it can be a response to that a particular port, and that information again passed to the TCP through that particular client. अब ये आर्किटेक्चर थोड़ा ये समझने में आपको वक्त लग सकता है, इसका हम आगे देखेंगे. क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, पोर्ट कम्युनिकेशन हम आगे देखेंगे. अब ये जो है डाटाग्राम पैकेट, नेटवर्किंग का जो नेटवर्किंग कंसेप्ट है, ये अंडरस्टैंड होने के लिए आपको पहले थोड़ा सा आईपी एड्रेस के बारे में मालूम होना चाहिए. आईपी एड्रेस इज व्हाट, इट इज़ द यूनिक नंबर इज असाइन टू दैट अ पर्टिकुलर नेटवर्क, एंड जनरली उसका रेंज है वो 0 to 255 होता है, और इट इज़ वन एग्जाम्पल 192.168.0 और 1. इन दिस वे we have to distribute that IP address, and by using the
इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रॉपर्टीज़, आईपी प्रॉपर्टीज, नेटवर्किंग के प्रॉपर्टीज़ में आपको आईपी एड्रेस का सेटिंग्स मिल तक सकता है और वहाँ से आप आईपी एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लॉजिकल एड्रेस, तो 0000 to 2555 जैसे कि वो रेंज आप, उसके बाद में प्रोटोकॉल, मैंने बोला है कि प्रोटोकॉल क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ द रूल्स दैट कैन बी बेसिकली यूज फॉर दिस अ कम्युनिकेशन, टीसीपी, यूडीपी, टेलनेट, एसएमटीपी, पॉप। अब इसमें पोर्ट क्या होता है? पोर्ट इज़ अ वन सिंपल अ नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाई फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशन। ये पोर्ट कौन से एप्लीकेशन को कौन सा पोर्ट अलोकेट किया होता है, स्पेशल एप्लीकेशन को एलोकेट किया जाता था। पोर्ट नंबर इज एसोसिएटेड विद दिस आईपी एड्रेस फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू एप्लीकेशन. A server socket can be listen the specific port and it can be give a response to that. अब ये पोर्ट इज ए पॉजिटिव नंबर, इट इज लेस देन और इक्वल टू 65565। तो यहाँ पे जो रिजर्व है 102 1023, इट इज़ द रिजर्व पोर्ट फॉर दिस एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। अब यहाँ पे एफटीपी के लिए 21, टेलनेट के लिए 25 फॉर ईमेल, 80 फॉर एचटीटीपी। ये देखेंगे हम आगे देखेंगे। तो ये जो है पोर्ट आपको मालूम हो गया है। उसके बाद में प्रोटोकॉल क्या है वो मालूम हुआ है, प्रोटोकॉल। अब मैंने मैक एड्रेस इज द यूनिक आइडेंटिफायर फॉर दिस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल। तो मैक एड्रेस आपका यूनिक एड्रेस होता है, वो सिस्टम में इनबिल्ट होता है। उसके बाद में कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस हमने देखा है अभी, टीसीपी फॉर द कनेक्शन ओरिएंटेड, यूडीपी फॉर द कनेक्शन लेस। अब यहाँ पे सॉकेट और सर्वर सॉकेट, सॉकेट इज द एंड पॉइंट बिटवीन द टू वे कम्युनिकेशन एंड सर्वर सॉकेट इज द इंस्टेंस ऑफ द सर्वर क्लास एंड देन सर्वर सॉकेट कैन बी क्रिएटेड बाय ओनली अ जावा एप्लीकेशन। अब ये सॉकेट और सर्वर सॉकेट, इट इज़ फॉर द सॉकेट फॉर दिस क्लाइंट साइड, server socket is for the server side, and it is used for the two-way communication. तो इसके बाद में हम थोड़ा सा सर्वर रिजर्व सॉकेट देखेंगे और आज हम यहाँ पे एंड हो जाएंगे। और फिर हम नेक्स्ट जो पीरियड में हमारा एक्चुअल जावा नेटवर्किंग के क्लासेस और इंटरफेसेस के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर हम आईनेट एड्रेस का क्लास का देखेंगे। अब यहाँ पे रिजर्व सॉकेट है, यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बोला है कि टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू 1024 पोर्ट फॉर द अलोकेट फॉर दिस अवर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। एंड जैसे कि एफटीपी, उसके लिए हम टीसीपी यूज़ करते हैं और उसका पोर्ट नंबर कौन सा है 21। तो एफटीपी का क्या रोल है, टू सेंड the commands that they put and get by using this FTP. टेलनेट ये जो है रिमोट कमांड लाइन सेशन के लिए हम यूज़ करते हैं टेलनेट। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये हमको दो यूज़र के बीच में अगर मेल सेंड करना है तो हम SMTP। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे कैन बी आस्क व्हाट इज़ द रिजर्व सॉकेट पोर्ट फॉर दिस SMTP। तो आपको चॉइस देते हैं 21, 23, 25, 43, देन यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। सो एफटीपी के लिए 21, टेलनेट के लिए 23, एसएमटी के लिए 25। हु इज इसका पोर्ट नंबर है 43। और ये सिंपल डायरेक्टरी सर्विस है फॉर द इंटरनेट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। हु इज क्या है, इट इज सिंपल डायरेक्टरी सर्विस फॉर द इंटरनेट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद में फिंगर, उसको 79 है, a service that return the information about the user or users on this local system. ओके, फिंगर क्या करता है, आपके सिस्टम पे कितने यूज़र्स है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। HTTP, ये आपको मालूम है, HTTP इज़ द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो वर्ल्ड वाइड वेब
जब हम एक्सेस करते हैं वेबसाइट वेब पेज, तो एट दैट टाइम वी कैन बी यूज दिस पोर्ट 80. तो POP3 means post office protocol version 3. You have to transfer the accumulated email from the host to the client. ओके, कनेक्टेड क्लाइंट. तो हम POP3 यूज़ करते हैं. ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन है. ओके, उसके बाद में आई मैप का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, SMS सिस्टम. जो इट इज़ वन प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग मेल बॉक्स स्टोर्ड ऑन द सर्वर. तो इसमें जो भी मैसेज तुम्हारे स्टोर्ड होते हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है, तो वो हम आई मैप बोलते हैं उसको. तो उसका जो पोर्ट नंबर है 143. और बहुत सारे पोर्ट है वो जो रिज़र्व है, कि उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं. बट आई थिंक एज फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू सिलेबस, these are the more than a sufficient for you to understand the exactly what are the reserve port for this networking. तो इसके बारे और इसके आगे अगर देखा जाए, तो ये मैंने थोड़ा सा नेटवर्किंग के जो क्लासेस हैं, जैसे कि अब यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस हैं, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे. क्योंकि ये क्लासेस जो है TCP और UDP के लिए कौन कौन से है, उसके हिस्ट्री हम आगे देखेंगे. तो I think today we stop here, and in next session we cover about the networking classes and interfaces and INET address. Okay, so we end this session. Thank you very much.